ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଡିଏସ୍ ନଲେଜ ପଏଣ୍ଟରେ ସ୍ୱାଗତ ସହ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଡିକେ ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆଜି 2/11/2025 ସିବିଟି ମୋଡରେ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଆଇ, ଏଆର୍ଆଇ, ଅମିନ୍, ଆଇସିଡିଏସ୍, ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ର ଅଲ୍ ସିଫ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସରକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା। ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ର ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସିଫ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସରକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ନଲେଜେବଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିଏ ଚାଲିଯିବ। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ? କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଓକେ, ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନମ୍ବର 1 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଦ ହାଇକୋର୍ଟ କମ୍ସ ଅଣ୍ଡର ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ। ତାମାନେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆମର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲରେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ରହିଛି? ତାହେଲେ ଆମର ହାଇକୋର୍ଟ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆର୍ଟିକଲ 214ରେ ରହିଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାକ୍ଟରେ ଜାଣି ରଖିବା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ସିଫ୍ଟ କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ ହାଇକୋର୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଲିକତାରେ ହାଇକୋର୍ଟଟିଏ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା 14 ମେ 1862 ମସିହାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 1862 ମସିହାରେ ଆମ ଭାରତରେ 3ଟି ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ କଲିକତାରେ ହେଇଥିଲା, ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ବମ୍ବେରେ ହେଇଥିଲା, ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଡ୍ରାସରେ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏହି 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାରତର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭାରତରେ ଟୋଟାଲ କେତୋଟି ହାଇକୋର୍ଟ ଅଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିପାରେ। ତାହେଲେ ତାହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 25ଟି। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଆମ ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାନେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛି ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25ଟି ହାଇକୋର୍ଟ ରହିଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ଗୋଟେ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ଯେଉଁଥିରେ କି ତାର ନିଜର ହାଇକୋର୍ଟ ରହିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆମର ହାଇକୋର୍ଟଟିଏ ଆମର କେଉଁ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଇକୋର୍ଟ ଆମର ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛି, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ତେଣୁକରି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯଦି ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଯିବା ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜିକେ ସେକ୍ସନରେ କୌଣସି ବି ଏକ୍ଜାମରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନମ୍ବର 2 କ'ଣ କହୁଛି? ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରିଭର ଫ୍ଲୋଜ୍ ଥ୍ରୋ ଓଡ଼ିଶା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନଦୀଟିଏ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇକରି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ? ତେଣୁକରି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ମହାନଦୀ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆଉ ମହାନଦୀ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ, ୟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କେବଳ କୁହେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହିଁ ଅରିଜିନ୍ ହେଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଫ୍ଲୋ କରିଥିବା ନଦୀ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଳନ୍ଦୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ବୈତରଣୀ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମନେ ରଖିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ନଦୀର ନାଁ ଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ଦୟା ନଦୀ, ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଭର ରିଲେଟେଡ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ନିଶ୍ଚୟ ଆସୁଛି, ପଢ଼ିକିରି ଯିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନମ୍ବର 3। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ୱେଆର୍ ନଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ଡ ଇନ୍ ପାର୍ଟ 3 ବିକଜ ପାର୍ଟ 3 ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାର୍ଟ 3 ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ପାର୍ଟ 3 ଏକ ଡ୍ୟାସ୍। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି। କାହିଁକିନା ପାର୍ଟ 3 ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଷ୍ଟିସେବୁଲ୍। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ପିଲାମାନେ? ପାର୍ଟ 3ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଷ୍ଟିସେବୁଲ୍, କିନ୍ତୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସେବୁଲ୍ ନୁହେଁ। ଓକେ ପିଲାମାନେ? ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ନଥିଲା। ମାନେ ଯେତେବେଳକୁ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରାଗଲା ସେହି ସମୟରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜଟିଏ ନଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜଟିଏ 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1976ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଣ୍ଟର କରାଗଲା ସମ୍ବିଧାନକୁ, ମାନେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଗଲା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସକୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେତେବେଳକୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜଟିଏ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଗଲା ସେତେବେଳକୁ ଆମର 10ଟି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ରହିଥିଲା। ପରେ 2002 ମସିହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 86th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ। ତେଣୁକରି ଟୋଟାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭାରତରେ 11ଟି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ରହିଛି। ମନେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ? ଆଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଟିକଲ 51A ରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପାର୍ଟ 4A ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
बुझिपारे पिलामाने तेणुक फंडामेंटाल ड्यूटीज आपको डिटेल आलोचना करदेली यही टाइप जदि आपंकर रिविजन शुणी शुणिकी जी एवं वीडियो देखी देखिकी जी आपंकर बहुत मन रही नोट्स तो निश्चय करेंगे। ओके नेक्स्ट नंबर 4 उत्कर्ष ओडिशा इवेंट 2025 बहुत इंपोर्टेंट पिला माने मु एक्स्ट्रा फैक्ट जो एनालिसिस माध्यम रे आपण मानकु जणाउची सेहितरु ही एई सब क्वेश्चन आसुची जेमिति का आपण मानकर ओडिसा रो रिवर सिस्टम पूर्व शिफ्ट मानकर मु एनालिसिस करथिली सेहितरु मते आसी देखंतु देन आपण मानकर फंडामेंटल ड्यूटीज मु डिटेल आलोचना करथिली ता भितरु प्रश्नटी आसी बुझिपारे तेणुक यही उत्कर्ष ओडिशा आपको आलोचना करी तेणुक पूर्व एनालिसिस गुड़ा निश्चय देखु जो द्वारा कि आपर आगामी परीक्षा एवं आगामी शिफ्ट काम आसो। उत्कर्ष कनक्लेव विषय में आपको देखु उत्कर्ष ओडिशा कनक्लेव 2025 से कौन कौच ना हेज अट्राक्टेड टोटाल हाउ मेनी प्रोजेक्ट माने टोटाल केतोटी प्रोजेक्ट को सी अट्राक्ट करथिला मन रखिए यार सठिक उत्तर 593 प्रोजेक्ट को अट्राक्ट करिथिला एटा थिला यार सठिक उत्तर किंतु आगामी शिफ्ट आपनकर कोन पचारिबो देखंतु ए जो ओडिशा उत्कर्ष कनक्लेव होइतिला एथिरे टोटाल केतेटी सेक्टर रहितिला ताले एथिरे टोटाल सेक्टर कहले आपनकर 20 टी हि जिवो आ केते अमाउंट इन्वेस्टमेंट हेतिला याकू मध्य मन रखिए ताले 16.73 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट हबो आपनकर उत्कर्ष ओडिशा अनुसार आउ केते जॉब आपण मानको अपॉर्चुनिटी रहिबो ताले आपण मानकर 12.88 लाख आपण मानकर जॉब कोन हिजिवो अपॉर्चुनिटी रहिबो बुझ पाले तेणुकरी एगेन आपण मानकर उत्कर्ष ओडिशा कनक्लेव 2025 भुवनेश्वर जो हेतिला ता विषय आपण माने निश्चय पढंतु जानंतु एवं पूर्व जो एनालिसिस करथिली सेहिथिरे मध्ये आपण मानको डिटेल बुझाई देथिली ताकू निश्चय देखिबे। ओके आ जो माने नोट करथिबे केवल जस्ट आपण मानको रिवीजन करिवा दरकार। ओके देन नंबर 5 द इंडियन मॉनसून इज कॉल्ड साउथ वेस्ट मॉनसून बिकॉज डैश देखंतु आम भारतर जो मौसुमी रही से मौसुमी गोटे को आपण मानकर साउथ वेस्ट मॉनसून बा दक्षिण पश्चिम मौसुमी बोलिकी कहती यहाँ कहीं कहती आपण मानक पचार देखंतु यही प्रश्नटी आपण मानकर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन टी रही यार ऑप्शन गुड़ा बहुत लेंदी थिला तथापि मु आपण मानकु डिटेल आलोचना कर दूची देखंतु कौन हो ना साउथ वेस्ट मॉनसून कहीं कह जाए ना कहीं ना से मॉनसून बा मौसुमटी आपण मानकर साउथ वेस्ट रु नॉर्थ ईस्ट को जाई थाई तामाने आम भारतर दक्षिण पश्चिम रु उत्तर पूर्व दिग को मौसुमी वायुटीए प्रवाहित होता है तेणुकरी ता ना होची साउथ वेस्ट मॉनसून मन रखिए एक्स्ट्रा फैक्ट जानी रखंतु ज्योग्राफी क्वेश्चन टी बहुत काम आसो पिला माने साउथ वेस्ट मॉनसून आपण मानकर भारत में जून मासरू आरंभ होकर सेप्टेम्बर मास पर्यंत रही था देन नॉर्थ ईस्ट मॉनसून टी आपण मानकर नवेम्बर रु आरंभ होकर डिसेम्बर मध्य बा जनवरी मास बेलू एटा सरी जाए बुझीगला तेणुक साउथ वेस्ट मॉनसून जून सेप्टेम्बर मध्य रही थाए आ नॉर्थ ईस्ट मॉनसून नवेम्बर डिसेम्बर होता है मन रहा पिला माने पूरा क्लियर मौसुमी रिलेटेड क्वेश्चंस को निश्चय पढ़ी जी। ओके देन नंबर 6 व्हाट इज द टोटल बजेट फॉर द फिस्कल ईयर 2025 माने 2025-26 रे जो यूनियन बजेट भारत सरकार को आसतिला टोटल केते टंका बजेट रही थिला देखंतु यार सठिक उत्तर हो 50 लाख करोड़ आपण मानकर ऑप्शन रे 50 लाख कोटी टंका निश्चय थिबो कहीं ये हूँ एप्रोक्स वैल्यू किंतु पर्टिकुलर देखापी गले आमर 50.65 लाख करोड़ टंका आपंकर बजेट कौन होता ना फिस्कल ईयर 2025 रे रही तेणुक बजेट क्वेश्चंस बहुत इंपोर्टेंट इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपोर्टेंट मो पूर्व शिफ्ट रे प्रत्येक शिफ्ट वाइज जो क्वेश्चन आनालिसिस करी क्वेश्चन भर रही बुझिपारे देन आम देखा नंबर 7 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बुझीगला ताले ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स एटा आपण मानकर टोटल 148 टी कंट्री रे बेस करिक रिपोर्ट टी आसी थाए सेहिथिरे आम भारत 131 रैंक रही माने 148 टी देश मध्यरु 131 रैंक आम भारतर रही ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट अनुसार मन रखिए पिला माने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को किए रिलीज करि थाई ताले WEF बा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रत्येक वर्ष आमर स्विट्जरलैंड रो डावोस टारे अनुष्ठित होई थाई सेहिथिरे आपण मानकर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिलीज करा जाय बुझिला
आउ कौन पचारि पारे ना 2024 रे यार रैंक केते थिला मने रखंतु 2024 रे भारतर रैंक 129 थिला तामाने एई वर्ष केतोटी रैंक तळकु खसिछि एटा मध्ये पचारि पारे ताले दुईटी रैंक आपण मानकर तळकु खसिछि बहुत इंपोर्टेंट ओके आसंतु पिला माने नंबर 8 क्वेश्चंस को देखिबा कोन कहूछि ना व्हाट इज द फोकस ऑफ द 2025-26 बजेट इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर ता माने हमर एग्रीकल्चर टर्म्स अनुसार देखिया पई गले 2025-26 रे जो बजेट आसीतिला का ऊपर फोकस करा जायतिला मन रखिबे आपण मानकर जेहेतु मु ऑप्शन टे पाई पारु नाही तथापि मु आपण मानकु डिटेल कहि दोछि देखंतु आपण मानकर फार्मर्स इनकम्स ताकू इंपोर्टेंस दिया जायतिला ता सहित रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत एम्फासिस दिया जायतिला आउ इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी याकू मध्ये इंपोर्टेंस दिया जायतिला ताहले आपण मानकर ए तीनोटी फैक्टर्स को इंपोर्टेंस दिया जायतिला याकू मन रखिबे नेक्स्ट शिफ्ट आपण मानकर केमिति प्रश्न आसीबो मु आपण मानकु कहूची मन देखि सुनंतु आपण मानकु कोन पचारिबो ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फोकस इन द टर्म ऑफ एग्रीकल्चर ता माने एग्रीकल्चर अनुसार को ऑप्शन टी को फोकस करा जाय नै तेनकरी तीनोटी आपण मानकर ऑप्शन देइथिबो आ गोटे अदर ऑप्शन रहिथिबो तेनकरी एई तीनोटी तो आपण मानकर फोकस करा जायछि किंतु आ गोटे टी करा जाय नथिबो सेठी आपण मानकर सटीक उत्तर हेइजिबो बुझ पाले ता माने एई प्रकारर प्रश्न को मध्ये आपण मानकर अल्टेक्री रिवर्स करिकि मध्ये पचारे ओके देन देखिबा में नंबर 9 प्रश्न को कोन कहूछि ना बाउंड्री लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज नोन एज डैश ता माने पाकिस्तान आउ अफगानिस्तान एई दुईटी देशर जो सीमा रेखा अछि तार नाम कोन बोली आपण मानकु पचारुछि तेणुकर यार सठिक उत्तर हो डुरांड लाइन मन रखिए पिला माने सेही समय रे ब्रिटिश शासन होउथिला से ब्रिटिश शासन समय रे जड़े ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थिले डुरांड बोली करी तांको नाम अनुसार डुरांड लाइन हितिला एक्स्ट्रा फैक्ट जानी रखंतु डुरांड लाइन आपण मानकर 2430 किलोमीटर रहिछि ता सहित एक्स्ट्रा आमे किछि जानिबा जोउडा कि आपण मानकर आगामी परीक्षा रे निश्चय काम रे आसीबो बुझि पाले आसंतु पिला माने कोन अछि ना यूएसए आउ कनाडा ए दीटा देशर बॉर्डर लाइन को आमे 49th पैरेलल लाइन मध्ये कहिताउ ठीक सेमिति का नॉर्थ कोरिया आउ साउथ कोरिया रो बॉर्डर लाइन को आमे 38 पैरेलल लाइन कहिताउ देन फ्रांस आउ जर्मनी रो बॉर्डर लाइन को मागिनोट लाइन कहिताउ आउ चाइना आउ इंडिया रो बॉर्डर लाइन को मैकमोहन लाइन कहिताउ बुझ पाले पिला माने आउ लिबिया आउ सुडान मन रखिबे बहुत इंपोर्टेंट पिला माने लिबिया आउ सुडान रो बॉर्डर को हमरो 20th पैरेलल लाइन कहिताउ बुझ पाले देन आपण मानकर मन रखिबा दरकार इंडिया आउ पाकिस्तान रो बॉर्डर लाइन को कोन कोनती आपण माने निश्चय कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके जणिबे ता सहित जो माने एई शिफ्ट रे किंबा एई दिनर जे कोनोसी शिफ्ट रे मध्ये परीक्षा दैतिले से माने निश्चय कमेंट बॉक्स रे क्वेश्चंस को मेंशन करके जणिबे को क्वेश्चन को शिफ्ट आसीतिला ता सहित हमर टेलीग्राम ग्रुप डीके सर ओडिशा तार लिंक मध्ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे रहिछि सेही लिंक माध्यम रे जाई जॉइन करके निश्चय आपण माने ग्रुप रे शेयर करि परिबे एवं पीडीएफ पई आपण मानकर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एडीएस नॉलेज पॉइंट तार लिंक मध्ये आपण मानकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे रहिछि नहले सर्च करी मध्ये आपण पाई जिवे एवं निश्चय जॉइन टिए करिवे बुझ पाले देन आमे देखिबा नंबर 10 हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया विन एट द 32nd फिशु समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 देखंतु पिला माने फिशु समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम बहुत इंपोर्टेंट आपण मानक पई मु पूर्वरु एई प्रश्नटी एनालिसिस करथिली सेही प्रश्नटी पुणी उथरे आसुची देखंतु कोन पचारथिला एथिरे केवल परिवर्तन एया करथिला कि टोटल मेडल आपण मानकु पचारछि एथिरे टोटल मेडल हिछि 12टी पुणी उथरे आपण मानकु कहि रखुची पुणी क्वेश्चंस केमिति आसीबो देखंतु आपण मानकर पचारिबो फिशु समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 मसिया रे कोठी हेतिला केते तम हेतिला केते तम कहले कोन कहिबे ना 32 तम हेजिबो कोठी हेतिला जर्मनी देशर बर्लिन रे होइतिला ताले को देश होस्ट करछि ताले जर्मनी को शहर रे होइतिला बर्लिन याकु मत मन रखिबे आ मन रखंतु ए जो फिशु समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 यार अन्य नाम कोन यार अन्य नाम होची राइन रोर 2025 बुझ पाले आ एई गेम टी आपण मानकर प्रत्येक 2 वर्ष रे थरे हेइथाय ता माने आपण मानकर पूर्वरु 2023 रे हितिला 2025 रे हिची पुनी आगो को 2027 रे हबो बुझ पाले
एक्स्ट्रा फैक्ट रे जानि रखिबा पिला माने भारत कोउथिरे केते केते मेडल पाइछि देखंतु गोल्ड आपण मानकर 2टी पाइछि सिल्वर 5टी पाइछि ब्रोंज 5टी पाइछि ताले सर्वमोट आपण मानकर 12टी मेडल को विन करिछि बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पिला माने ओके चलतु नेक्स्ट क्वेश्चंस को जिबा नेक्स्ट नंबर 11 व्हिच आर्टिकल हैव बीन इंसर्टेड टू प्रोवाइड रिजर्वेशंस फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस इन 2019 ता माने 2019 मसिया इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन रो रिजर्वेशन टी लागू होइतिला याकु मने रखिबे एइथिरे आपण मानकु पचारछि केते नंबर आर्टिकल रे ताकू इनसर्ट कराइछि माने पूरा आइछि ताले हमरो भारत रो आर्टिकल 15 और 16 रे पूरा आइछि जदि आपण मानकु डिटेल पचारे ताले कोन कहिबे ना आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 एवं आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6 रे हमरो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन माने ईडब्ल्यूएस जो थिरे आपण मानकर 10% रिजर्वेशन रहिबो ताको इनक्लूड कराइछि बा इनसर्ट कराइछि बुझि गले पिला माने एक्स्ट्रा फैक्ट जानि रखंतु इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एटा आपण मानकर 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 आसीथिला बुझिला पिला माने तन करी आपण मानकर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एवं आपण मानकर आर्टिकल ए सब क्वेश्चंस को निश्चय पढंतु प्रैक्टिस करंतु देन आमे देखिबा ओडिया सेक्शन को ओडिया रे आपण मानकर कोन सब प्रश्न आसुची देखंतु बहुत प्रश्न आपण मानकर फिल इन द ब्लैंक्स आसुची जेमिति कि रामो बाहाघरे भोजी डैश इजी प्रश्न आसुची पिला माने किछि जेमिति का ओरी ढाबार नाही कोन कहूची ना रामो बाहाघरे भोजी कोन बाहाघरे भोजी कोन करिवो खाइबो तन करी एथिरा आपण मानकर ऑप्शन रे खाइबो थिला तन करी सठिक उत्तर खाइबो हेइ जिवो तन करी एई परीक्षा आपण मानकर इजी नॉर्मल क्वेश्चन गुडा सब ओडिया रो फिल इन द ब्लैंक्स रे आसुची ता सहित ओडिया आपण मानकर पीक्यूआरएस आसुची अनुच्छेद प्रत्येक शिफ्ट आसुची पिला माने 4-5टी प्रश्न ता सहित विपरीत शब्द आसुची प्रतिशब्द आसुची आ अनुवाद प्रश्न आसुची पिला माने 3-4टी प्रश्न आसुची ओडिया टू इंग्लिश एवं इंग्लिश टू ओडिया अनुवाद आसुची देन आपण मानकर एकपदीकरण रो प्रश्न आसुची पिला माने कहूतिले ए नाउरी नौका ए संपर्क किछि एकपदीकरण प्रश्न आसीतिला ताकू मते निश्चय पढी नेबे बुझिला पिला माने देन वर्तमान हम देखिबा इंग्लिश सेक्शन को इंग्लिश रे आपण मानकर इडियम फ्रेज प्रत्येक शिफ्ट आसुची कोन आसुची देखंतु ना बर्न द मिडनाइट ऑयल बहुत इंपोर्टेंट इडियम फ्रेज या माने होछि आपण मानकर वर्क लेट इनटू द नाइट ता माने मध्य राति पर्यंत माने अधिका राति पर्यंत लेट नाइट पर्यंत काम करिवाटा होछि आपण मानकर बर्न द मिडनाइट ऑयल सेटा थिबो नहले आपण मानकर हार्ड लेबर जदि थिबो ताकु मतो टिक मारिबे किछि असुविधा होबो नै बुझिला देन आपण मानकर इंग्लिश रे पीक्यूआरएस आसुची पैसेज आसुची एंटोनिम सिनोनिम सिंगल वर्ड ई सब प्रश्न आसुची ता सहित प्रत्येक शिफ्ट रे आपण मानकर एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस देन डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच एवं आपण मानकर इनडायरेक्ट स्पीच टू डायरेक्ट स्पीच रिवर्स क्वेश्चन मध्ये आसुची इंग्लिश रो ए सब टॉपिक को निश्चय पढ़ी करी जिवे ओके देन आमे देखिबा रीजनिंग सेक्शन को रीजनिंग रे आपण मानकर प्रत्येक शिफ्ट रे सिटिंग अरेंजमेंट रो 4-5टी प्रश्न आसुची पिला माने देन आपण मानकर स्टेटमेंट कंक्लूजन रो प्रत्येक शिफ्ट रे 2टी प्रश्न आसुची सीरीज रो 2टी प्रश्न आसुची ब्लड रिलेशन रो क्वेश्चन आसुची पिला माने देन मैथमेटिक्स रो आपण मानकर प्रॉफिट लॉस सीआईएसआई डिस्काउंट ट्रेन प्रॉब्लम सिंप्लिफिकेशन आपण मानकर 3-4टी आसुची पिला माने कहउतिले किछि क्वेश्चन इजी आसुची आ किछि क्वेश्चन बहुत टाइम टेकिंग लागुची माने कैलकुलेटिव रो क्वेश्चन सब आसुची हैला तापरे आपण मानकर पार्टनरशिप परसेंटेज आ ज्योमेट्री रो प्रश्न आसुची ज्योमेट्री आपण मानकर सर्कल एवं रेक्टेंगल रो प्रश्न आसीथिला तन करी ताकु निश्चय पढी कि जिवे बुझियला ये थिला हमरो डिटेल एनालिसिस आपण माने निश्चय भाबरे एई टाइप रो एग्जाम दे सैला परे क्वेश्चंस को शेयर करिवे एई क्वेश्चंस को शेयर करथिले रापाज किसकु सुकांत एकांती मांती तांको अशेष अशेष धन्यवाद आपण माने मध्य निजर शिफ्ट साइला परे निश्चय ए ग्रुप रे टेलीग्राम ग्रुप रे आपण मानकर थॉट्स किबा आपण मानकर डाउट किबा आपण मानकर जहां भी किछि मने थिबो मेमोरी बेस ताकू निश्चय शेयर करि परिबे जो द्वारा कि आमे आ स्टैंडर्ड लेवल रो एनालिसिस करि परिबा बुझियला पिला माने आ प्रत्येक दिन आपण माने एनालिसिस देखंतु जो मानकर सरी जैछि से माने मध्य देखंतु कहीं कि ना मेन एग्जाम रे मध्य या रिलेटेड प्रश्न सब आसीबो तनो करी कोनोसी असुविधा हबो नै आ जो माने नुआ करी कि आछंती से माने चैनल टिकु निश्चय भाबरे सब्सक्राइब करिवा सहित बेल आइकन रो ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देबे जा फल रे मु वीडियो छाडू छाडू आपण माने को मोबाइल को नोटिफिकेशन टिए चली जिवो बुझियला सांग माने को निकट को शेयर करिवे लाइक तो निश्चय करिवे आ मतामत देबाकू जम्मा भूलिबेनी
ଧନ୍ୟବାଦ।